In this session, we are going to study English subject, and in our last session already we have read a story from the comprehension junction of the chapter number 6. So today, first of all, we would be discussing the question answer. We would be discussing the possible answer of the mini questions, what the questions mentioned into your book. Thereafter, if we would be having a time, then we would be completing the listening or speaking junction. ऑलरेडी वी हैव डन द स्पीकिंग जंक्शन ना. स्पीकिंग जंक्शन हम लोगों ने नहीं, स्पीकिंग जंक्शन भी बचा हुआ है. ये कंप्लीट हो गया है? नो सर. No, sir. ओके. No, sir. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू comprehension junction. Beta, already we have read this story that there is a two girl, Nina and Meena. Reena and Nina. Nina was a soft-spoken and gentle, while Reena was rude and arrogant. दोनों पॉट लेकर के पानी लाने रिवर जा रही थी. तो क्या हुआ था? Both met a old lady. Both met the old lady. और जब ओल्ड लेडी से मिली तो उसके साथ एक रात वो लोग बिताई भी, रही भी साथ में. How they behave, how both the girls behaved with the old lady. Already we have read. Also we have read that कि after coming back to the home, ओल्ड लेडी ने जो गिफ्ट दिया था उसमें से ओपन किया था तो क्या किसको मिला था. ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं ना? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, Now- sir. Yes, sir. Now we have to answer the questions. Now we have to answer the questions based on that story. The first question is, where did her mother ask Nina to go and why? How many can answer this question? Shimangi Tripathi, बताइए. Where did her mother ask Nina to go and why? Her mother asked Nina to go Dum Dum River because there was little water, very little water in the pot. Very good. Her mother asked Nina to go the Dum Dum River to fill the pot because there is a very few waters. बहुत ही थोड़ा पानी पड़ा हुआ था, बचा हुआ था. Okay. Now, so what you are supposed to write the answer of these questions? Beta, one question I will discuss to everyone because also we have to discuss some others. फिलहाल आस्था मौर्य, आप भी बताइए, what is the correct answer of this question? Her mother asked Nina to fill the pot from Dum Dum River because there was few water in their house. Nina's mother asked to her to fill the pot with water from the Dum Dum River. क्या नाम था? यही नाम था? Dum Dum. Dum Yes, sir. Dum Dum River. Dum River. So moving ahead, the second question. First question का आंसर सभी लोगों को समझ में आ गया? What we are supposed to write? Yes, sir. Now sir. Yes, sir. come to the second question. Why did the old woman ask Nina to spend the night with her? Why did the old woman ask Nina to spend the night with her? Who can attempt to answer this question? कौन दे सकता है इसका आंसर? शिवान्या चौधरी, बताइए आप. The old woman asked Nina to spend the night with her because there was a very dark of you to walk around. Okay, Rajpal, what is your answer? The old woman said, because it is the dark from you to walk around alone, you can spend the night with me. I am all alone. Okay. Yes.
फिलहाल दोनों ने थोड़ा सा, दोनों ने लगभग सही आंसर दिया। द ओल्ड वुमेन आस्क्ड नीना टू स्पेंड द नाइट विथ हर बिकॉज भी यूज कर सकते हैं, एज भी यूज कर सकते हैं। एज इट वॉज टू डार्क, बहुत ही ज्यादा डार्क था, फॉर द नीना टू वॉक अराउंड अलोन, वहां पे चारों तरफ अकेले जाना बहुत ही डार्क था। इट वॉज टू डार्क फॉर नीना टू वॉक अराउंड अलोन। सो व्हाट यू ऑल सपोज टू राइट? आपको सीधा जो यहाँ पे आंसर जो है आप अपने क्वेश्चन से शुरू करेंगे। हाउ यू नीड टू राइट? द ओल्ड वुमेन आस्क्ड, नाम है पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए, नीना टू स्पेंड द नाइट विथ हर एज इट वॉज टू डार्क फॉर नीना टू वॉक, किसके लिए? तो चलने के लिए, टू वॉक अराउंड अलोन। ओके, Yes, जो आंसर है इसका ये निकल के आएगा, आप ही लोगों ने बताया, और whoever answered the question सही बताया। Now move ahead on this next question, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। What happened? क्या हुआ? When Reena opened the box that was given by the old woman, ध्यान देने की बात है, यहाँ पे रीना के बारे में पूछा जा रहा है, not नीना। What happened when Reena opened the box that was given by the old woman? अनुष्का यादव। When she opened it, out came all sorts of insects that was given by the old woman. अंचित कुमार बताइए आप भी। The Reena opened box that was given by the old woman. There was many insects in the box. Insects are biting Reena. Reena got home very hurt. शिखर वर्मा, what happened when Reena opened the box that was given by the old woman? The Reena इंग्लिश शांत कराइए। opened box. Reena opened box and it is very happy. But the next morning, क्या हुआ था जब रीना बॉक्स ओपन की थी तो उसमें बहुत सारे कीड़े या बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो रेंगते हुए उसके हथेली पे आ गई थी और उसको हार्ट पहुंचा दी थी, काट ली थी ना, यही तो हुआ था। आप कुछ बोल रहे थे, आप Yes, थोड़ा sir. तेज so what you all can write the answer क्या लिख सकते हैं? The Reena. when नेम है पहला लेटर कैपिटल में, रीना ओपन द बॉक्स that was given by the old woman, all sorts and insects came out. आपकी बुक से ये सारे आंसर लिखे जा रहे हैं। When Reena opened the Yes, box sir. that was given by the old woman, all sorts of insects and creatures crawled out of it onto the Reena's, starting biting her. Okay? कहाँ पे दिया है ये? आप लोगों ने फिलहाल इसका आंसर देने का प्रयास किया, but most of you could not frame properly. But how you need to write in correct way? You can go through. You can take the help from the story itself. Story से ही देख करके आप लिख सकते हैं. Where is the answer? It is given. Let me show you. अभी आपका ये आंसर भी जा रहा है. Here. He opened it. जैसे ओपन किया क्या हुआ? All sorts of insects and creatures came out of the box. All sorts of insects and creatures come out of the box, crawled onto the Reena's and started biting her. यही तो इसका आंसर होना चाहिए।
Yes, sir. Yes, वही मैंने लिखा है, Yes, sir. वही मैंने Yes, लिखा भी है। Yes, sir. ठीक है, now come to the next question. The next question is complete the table using describing word. Describing word समझते हैं क्या होता है? Describing word क्या होता है? Asta Moria, what is describing word? What are describing words? अनुष्का यादव, what are describing words? और जो किसी भी चीज को डिस्क्राइब करे उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का सेकंड नेम क्या है? प्रेपोजिशन में किस नाम से उसको जानते हैं? प्रेपोजिशन में बता रहा हूँ, सॉरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस नाम से जानते हैं ऐसे वर्ड्स को? नाउन, Adjective. सर एडजेक्टिव एडजेक्टिव, वेरी गुड, Adjective. वेरी गुड। एडजेक्टिव या एडवर्ब? Adjective. एडवर्ब इज आल्सो द डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो किसी भी वर्ड को डिस्क्राइब कर रहे हो, यानी उसके डिटेल में बता रहे हो, उसके डिटेल बता रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो, दैट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो आप लोगों ने बोला एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। कंप्लीट द टेबल यूजिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आपको एडजेक्टिव वर्ड्स से आपको कहीं ना कहीं जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको यहाँ पे नीना के बारे में जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है यहाँ पे लिखना है, रीना के बारे में जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है इस वाले टेबल में लिखना है, इस वाले कॉलम में लिखना है। समझ में आ रहा है? यस सर Yes, sir. और देर आफ्टर जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है, मान लीजिए अगर आपने लिखा कि नीना के लिए लिखा नीना वाज ए सॉफ्ट स्पोकन, तो नीना आपका सॉफ्ट स्पोकन है, तो उसके लिए आपको कोई एग्जांपल देना पड़ेगा फ्रॉम द स्टोरी इटसेल्फ। एग्जांपल फ्रॉम द स्टोरी कि वो सॉफ्ट स्पोकन कहाँ पे शो कर रही है, किस सेंटेंस में, कहाँ पे क्या कही, कहाँ पे किस तरीके से बोला, तो वो एग्जांपल आपको वहां पे शो करना है। ओके, सो जस्ट फाइंड आउट द सम ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द नीना। फाइंड आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द नीना, और उसके बारे में एग्जांपल्स भी। यू आर हैविंग ओनली 1 मिनट, जल्दी से। Did you find anybody, anyone? Anybody? Did anybody find? Yes, sir. Okay, Astha Moria, I found. Anybody else? Yes, sir. चलिए ठीक है, यशवर्धन आप बताइए। Reena. रीना या रीना, नीना किसके बारे में बोलने जा रहे हैं? Nina. Nina was a soft. मुझे सबसे पहले डिस्क्राइबिंग वर्ड बताइए स्टोरी में, कहाँ पे है, कौन से पैराग्राफ या कौन से लाइन में है, कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड? फर्स्ट लाइन में सॉफ्ट, दूसरी लाइन में स्पोकन है जेंटल। क्या क्या, फिर से रुक जाइए, लेट मी ओपन। इन फर्स्ट लाइन व्हाट इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड? व्हिच वन इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड? सॉफ्ट। सॉफ्ट आपका सॉफ्ट अकेले तो है नहीं, सॉफ्ट स्पोकन लिखा है, तो सॉफ्ट अकेले नहीं, सॉफ्ट स्पोकन। सॉफ्ट स्पोकन एक सिंगल सेंटेंस है, एक सिंगल वर्ड है, सॉरी एक सिंगल वर्ड है, मृदुभाषी इसका मतलब होता है। सॉफ्ट स्पोकन जेंटल। सॉफ्ट स्पोकन और जेंटल, ये दो कहीं ना कहीं नीना के बारे में बता रहे हैं, नीना को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि नीना सॉफ्ट स्पोकन है, नीना जेंटल है। तो सॉफ्ट स्पोकन और जेंटल का एग्जाम्पल भी देना है। हु कैन गिव द एग्जाम्पल? आस्था मौर्य बताइए। After the old woman asked her, she answered that in soft spoken that my mother has asked me to get water from the Dum Dum river. क्या फिर से एक बार बोलो बेटा? After the old woman asked her that, little girl, where are you going? Nina answered in soft spoken that my mother has asked me to get water from the Dum Dum river.
ये बता देने से, ये मतलब उसने पूछा और इसने बता दिया, इससे क्या डिस्क्राइब होता है कि ये बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है और बहुत ही जेंटल है? क्या जो आप एग्जांपल दे रही हो, क्या इससे ये मतलब निकल रहा है? ये दोनों जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड बोला गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या बोला गया? सबसे पहले बोला गया सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट स्पोकन हो गया, एंड जेंटल। ये सॉफ्ट स्पोकन और जेंटल के लिए आपको एग्जांपल देना है। शिवांगी त्रिपाठी, क्या होगा? बेटा माइक आपका नहीं ऑन है, नहीं चल रहा है, आवाज नहीं आ रही है। चलिए, शिवांगी त्रिपाठी का आवाज नहीं आ रहा है। अनुष्का यादव, आप बताइए। सर आप कहीं से देख करके बता रही हो, ठीक है, बताइए। मुस्कान प्रजापति, एक बार आप भी कोशिश करो बेटा। आप तो फिलहाल स्टोरी के समझ ही नहीं, आप कल या परसों की क्लास शायद आपने लिया था या नहीं? चलो, बच्चा रो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपना माइक ऑन रखो, कोई बात नहीं। एटलीस्ट यू आर टेकिंग द क्लास, दैट इज गुड। हु कैन आंसर द क्वेश्चन? आस्था ने बताया। एनीबडी एल्स हु कैन राइट, हु कैन गिव द एग्जांपल फ्रॉम द स्टोरी? बेटा, जो ओल्ड लेडी थी उसका हेल्प किया था नीना ने कि नहीं? किया था। यस सर। किया था। ओल्ड लेडी को छोड़ने के पहले, ओल्ड लेडी से घर वापस आने के पहले थैंक यू बोला था। Yes, sir. जो Yes, sir. जो एरोगेंट हो वो क्या थैंक यू बोलेगा? No, sir. वो थैंक यू बोला था, उसने थैंक्स, उसने धन्यवाद किया था, थैंक यू बोला था। दैट मीन्स कि शी वाज सॉफ्ट स्पोकन। ये दिखाता है कि वो सॉफ्ट स्पोकन है, मृदुभाषी है। और जेंटल, क्योंकि उसने सारा एक चावल के दाने में उसने खाना मतलब मना नहीं किया था। जितना उस ओल्ड लेडी ने जो भी उसको दिया था, जितना भी अनाज दिया था, उसी को उसने बनाया था, खाना बनाया था, सुबह ब्रेकफास्ट रेडी किया था। दैट मीन्स शी हेल्प द ओल्ड लेडी। कहीं ना कहीं ओल्ड लेडी की हेल्प की थी कि बैठ करके खाई थी, बैठ के हेल्प की थी। हेल्प की थी। हेल्प की थी। जेंटल को डिस्क्राइब कर रहा है, जेंटल को एग्जांपल के लिए एग्जांपल दे रहा है। तो व्हाट यू ऑल आर सपोज टू राइट, you all are supposed to write the example in this table, in this column. तो अभी क्या लिखेंगे? You can write that Nina helped the old lady. Okay? She Yes, sir. thanked Yes, sir. her when she received a gift from the old lady. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Nina helped the old lady. ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि she is gentle. She also thanked her when she received a gift from the old lady. जब वो गिफ्ट उसको मिला तो वो उसने थैंक यू बोला। तो that shows that she was soft spoken. Clear? समझ में आ गया? Now move ahead. Move ahead. And now you have to tell describing words for the Reena. Reena के लिए describing words जल्दी से बताइए। शिवांगी त्रिपाठी। Sir, rude and arrogant. Rude and arrogant. तो rude और arrogant के लिए एग्जांपल भी जल्दी से कोई बताएं। Rude and arrogant. Both the describing word I have written. Now you have to tell the example from the story. स्टोरी में एग्जाम्पल दिया है, उसके बिहेवियर को लेकर के क्या हुआ था जब ओल्ड लेडी से मिली थी। वहीं से आपको इसका आंसर मिल सकता है। शिखर वर्मा, बरखा, गौरव पासवान, साक्षी, बताइए। साक्षी पासवान,
ममता सोनकर बेटा, आज आप ज्वाइन कर रही हो क्लास, अभी आपने स्टोरी नहीं पढ़ा है। हर दिन टाइम से क्लास ज्वाइन किया करिए, आप आधा घंटा लेट रहती हो। हर दिन टाइम से क्लास ज्वाइन करिए। संजना पासवान इज ऑल्सो लेट, आज भी लेट है। इसका आंसर बताइए, एग्जाम्पल दीजिए, कौन देगा? रूड एंड एरोगेंट का एग्जाम्पल हु कैन गिव? कोई भी नहीं। चलिए आस्था बताइए, आप ही बताइए। Rina's left without thanking the old lady for the gift. देखो बेटा, एक रूड थी, रूड का एग्जाम्पल आपका, एक जगह वो बोलती है व्हाई आर यू, एक जगह वो क्या बोलती है? व्हाई आर यू कनेक्टेड, Why are you concerned? व्हाई आर यू कंसर्न। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा था ना, जब उसने पूछा था वेयर आर यू गोइंग, तो उसने क्या रिप्लाई किया था? व्हाई आर यू कंसर्न। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दैट मींस कि शी वाज रूड। बेटा बहुत वॉइस आ रहा है, बहुत नॉइस आ रहा है, बस ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में सही हो जाएगा, सारा बंद हो जाएगा आवाज। बेटा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर रूड एंड एरोगेंट। रूड और एरोगेंट के लिए मैं कह रहा था कि व्हेन शी वाज आस्क्ड बाय द ओल्ड लेडी वेयर आर यू गोइंग, तो उसने क्या बोला था? व्हाई आर यू कंसर्न। आप तो ये जो सेंटेंस है कहीं ना कहीं उसके रूड होने का एग्जांपल शो कर रहा है। देन एरोगेंट में क्या होता है? एरोगेंट उसने कहा था, जब पूछा था एनीवे आई डू नॉट केयर, ये सेंटेंस बोला था। Yes, sir. एनीवे, Yes, sir. Yes, sir. आई डू नॉट केयर। तो ये दो सेंटेंस ऐसे हैं जो रूड और एरोगेंट और विदाउट थैंक यू बोले वो वापस चली आई। ये भी कहीं ना कहीं दिखा रही थी कि वो एरोगेंट काइंड ऑफ एरोगेंट टाइप लड़की थी, है कि नहीं? Yes, sir. यू ऑल कैन राइट दैट Yes, sir. for rude why are you concerned? एक ये आप इसको डिटेल में लिख सकते हो। why are you concerned shows that she was rude type of girl। और सेकंड आप क्या बता सकती हो? इसको आप थोड़ा सा बाहर भी, टेबल के बाहर भी ले जा सकती हो, बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस हो रहा है। Yes, sir. Anyway, I do not care। This statement by Reena shows that she was an arrogant girl। ठीक है? Yes, sir. रूड गर्ल, आप रूड टाइप ऑफ गर्ल के बजाय रूड गर्ल करिएगा, इट वुड बी बेटर। ओके, दैट मीन्स कि यू आर सपोज टू राइट द आंसर इन दिस वे फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, Yes, sir. now move ahead on the Yes, next sir. question. The next question is a book section B। move ahead on the section B। section B में पहला क्वेश्चन है explain the meaning of। आपको मीनिंग एक्सप्लेन करना है। किसकी मीनिंग? It is too dark for you to walk around alone। It is too dark, ये बहुत ही घनी रात है, बहुत ही अंधेरा है आप तुम्हारे लिए, to walk around alone, अकेले आगे जाने के लिए या चारों तरफ जाने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? What does it mean? शिखर वर्मा बताइए। आज बहुत जल्दी आते तुम। बेटा आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है, थोड़ा तेजी से बोलिए। आज बहुत घनी रात है, तुम यहीं पे
गौरव पासवान, यशवर्धन, राजपाल, राजपाल तो बोलते नहीं है, संजना, ये सभी कथा सुनने आते हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए क्या? अभी अनुष्का, आस्था, ये सब भी जब बता देंगे इसके आंसर तो मैं आप लोगों से भी पूछूंगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आस्था आप बताइए बेटा, आस्था। तुम्हारे लिए तो अकेले चलने के लिए तुम्हारे लिए बहुत अंधेरी रात है। शिवांगी त्रिपाठी आप बताइए बेटा। The meaning of it's too dark for you to walk around alone is that the old woman asked that Nina do not walk around alone. यादव आप बताइए बेटा, अनुष्का यादव। Yes, sir. The meaning of it's too dark for you to walk around alone is that it is very dangerous night for you to walk alone. Yes, the answer for this question is the sentence "it is too dark for you to walk around alone" shows that it is dangerous in the night. It was too dangerous for a young girl to be walking around in the night. रात को इधर उधर छोटे बच्चे के लिए चलना, it is too dangerous. Okay, so what you are supposed to write the answer for this question? It is too dangerous. It is too dangerous for a young girl to be walking around in the night. Okay? Yes, sir. Now move ahead on the next question. Explain the meaning of curiosity got the better of her. Explain the meaning of curiosity got the better of her. Curiosity got the better of her. इसका मीन्स क्या हुआ बेटा? only 5 minutes is remaining. इसे बता दीजिए। शिवांगी त्रिपाठी आप ही बताइए बेटा, जो हैंड रेज करेगा मैं उसी से बोलूंगा। The meaning of curiosity got better of her is that Rina was not bait and she was very curious to open the box. यशवर्धन सिंह, now your turn. The meaning curiosity got the better of her. The Nina not curiosity to open the box. कुछ भी बोल रहे। इसका मतलब क्या हुआ ये पूछा जा रहा है। क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ हर, क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ हर, इसका मतलब समझाया गया था एक्सप्लेनेशन में। गौरव पासवान आप बताइए, ध्यान से सुनते हैं कि नहीं? बताइए क्या है इसका मतलब। क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर, जो क्यूरियोसिटी थी वो कहीं ना कहीं बेहतर, यानी उससे कहीं ज्यादा बेहतर होने पे क्या हुआ था? उस क्वेश्चन के बेस्ड में आंसर बता दीजिए सर। उसके अंदर सर वो था सर इंसेक्ट्स का। क्या मैं पूछ रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? चलो बरखा वर्मा, क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ हर। आदित्य आदर्श सिंह, व्हाट डज इट मीन? आदर्श वर्मा, आदर्श आदित्य सिंह, व्हाट डज इट मीन क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ हर? इसका मतलब क्या हुआ? आस्था मौर्य आप बताइए बेटा, आस्था मौर्य। The meaning of curiosity got the better of her is she was very curious to open the box and she didn't wait. She could not wait. Very good. Anushka Yadav. The meaning of curiosity got the better of her is he want to open a box and couldn't wait. Yes, she could not wait. The meaning of this statement is she could not wait due to her curiosity to open the box. यानी जो क्यूरियोसिटी था कहीं ना कहीं उससे आगे निकल गई, वो उस
रीना से कहीं ना कहीं बेहतर, क्यूरियोसिटी यानी बेहतर हो गई उस, तो क्यूरियोसिटी जब रीना की बात किया जा रहा है तो उससे बेहतर क्यूरियोसिटी कैसे हो सकती है किसी भी पर्सन से? दैट मीन्स जो क्यूरियोसिटी था दैट वाज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ रीना। जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो दैट मीन्स कि शी कुड नॉट वेट, वो वेट नहीं कर सकी, एंड शी ओपन द बॉक्स। सो हाउ यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? She could not wait because she was too curious. Okay? Yes, sir. Clear? sir. Yes, sir. Now only 2 minutes is left. So अब 2 मिनट जो बचे हुए हैं इसमें ये 2-3 क्वेश्चंस और हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। The last section. Give a title to the story. एक टाइटल देना है स्टोरी को, कुछ भी आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं, इट इज ऑन यू। जल्दी जल्दी दीजिए। अनुष्का यादव। Reena and Nina's behavior. ओके, रीना एंड नीना's behavior। आस्था मौर्य। The two Nina's and Nina's शिवांगी त्रिपाठी। Reena and Nina. अंचित कुमार। The two girls' behavior. टू गर्ल्स बिहेवियर। चलिए ठीक है। एनीबडी एल्स? शिखर वर्मा। The two sister behaviors. बेटा केवल बिहेवियर बिहेवियर ही सभी लोग बोलोगे एक दूसरे का सुन के, कोई दूसरा टाइटल दीजिए। अब टू गर्ल्स बिहेवियर, रीना मीनस बिहेवियर। गौरव पासवान बताइए। Sir, the two girl. द टू गर्ल, द ओल्ड लेडी नहीं हो सकता। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी? 3 कैरेक्टर है, ओल्ड लेडी, रीना एंड मीना। ये तीनों में से सबसे ज्यादा रोल किसने निभाया? ठीक है, बताइए बेटा। Old lady. और इसमें जो कहीं ना कहीं आपका जो आपका नीना का बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा एक अहम रोल प्ले किया। तो दैट मीन्स कि बीइंग सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, बीइंग जेंटल, ऐसा भी तो एक टाइटल हो सकता है। बरका वर्मा बोलिए बेटा। Yes, sir. ठीक है, Old and two girls. चलिए ठीक है। वट एवर द टाइटल यू हैव थॉट यू कैन राइट बाय योरसेल्फ। सभी लोग अपना अपना टाइटल दे सकते हैं। इट इज नॉट दैट कि आपके एक पर्टिकुलर टाइटल, आपके मन में जो भी आए वो टाइटल आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। एक्सप्लेन द सेकंड क्वेश्चन। व्हाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? द ओल्ड वुमन अलाउड रीना टू स्टे विथ हर। जो ओल्ड वुमन